democracy in order to democratize the information which must be given to all the masses of Arunachal Pradesh. Government of Arunachal took a very proactive step and reformed this policy. It's been 5 years, sir, it is not yet implemented. So that's why I brought this, because I believe that if it is done so, it will help in, sabse pehle, it will help in regulating the mushrooming of so many content creator and self-styled journalists. It will help in the ethical functioning of these self-styled journalists, which we have seen in many sectors today. It will also give them a sense of professionalism. It will also help the government to know which all houses are doing what. And at the same time, this industry, which needs the care of the government, which needs the support of the government, will also grow up to become the spokesperson, to become the watchdog of democracy in this state. And as our state needs peace, stability, and unity, and this will be doing a wonderful job. So my question relating to this will be, sir, the Minister, through the Speaker, sir, I would like to ask the Minister of Information and Public Relations Department, the status of Arunachal Pradesh Electronic Media Advertisement Policy 2020. How many electronic and digital media houses are empaneled under the policy? Why the policy is not yet implemented in total despite Gazette notification? And how much money has been spent by state government of Arunachal Pradesh for advertising in electronic and digital media channels from 2020 to 2024, both on national and regional satellite channels, sir? If I've been allowed to give the answer, I mean, from the minister, I think it will give a long way, it will go a long way in curbing nepotism, which might be on the rise. We can curtail that also, sir. So my humble question to the minister, sir, to the speaker. Thank you, sir. Minister. Speaker, sir, nicely said by the honorable member. You have answered your own question in so nicely. So, regarding status, that is also already in the answer. We have one media, that is Arunachal News 24/7 is already there, and Arunachal today has applied for the already applied. Now, regarding funding, you have expenditures and all you have said. That is also already in the answer. Now, the problem lies is, as you have said, with the mushrooming of all media houses and the media, now the opinions are also increasing with the increase of the media houses. So the policy is already we have already our policy of 2020. But some changes have to be done because of the new innovations of the new media houses and new media persons. So we are going for review of the policy. Some review will be taken. So now some changes like inclusion of caring viewing of baseless, motivated, malicious, scurrilous, obscene and derogatory reports, and non-caring or caring in the mutilated or tendinous manner or comment of the government. Press note, handouts, clarification, contradiction, and press communiques. Thank you. Sir, I just wanted to be sure by you, because it was done in 2020, sir. Gazette notification was done. It's 5 years. I'm told it is 5 years. I've gone through it. It is 5 years. 5 साल हो गए सर. अभी तक ये हुआ नहीं है. अगर रिवाइज करना भी था सर, 5 साल आपके साथ था. आप क्या कर रहे थे सबसे पहले? और मैंने देखा कि अगर आप ये नहीं करते तो हमारे न्यूज चैनलों पे मैंने कई जगह विदाउट एनी लाइन टू एनी न्यूज हाउसेस
आने के लिए जाने के लिए काफी न्यूज कवरेज फीस भी लेते हैं। सर अगर आप ये पॉलिसी को आपने मुझे बताया कि आप रिवाइज कर रहे हैं, तो सर रिवाइज करके आप कब इम्प्लीमेंट करेंगे सर इसको? अगर हमें इफ यू कैन टेल अस वेरी विद क्लैरिटी कि हम अभी करने वाले हैं, एक हफ्ते के बाद, जैसे हमारे सीएम सर हमेशा बोलता है डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब तक करेंगे? अगर आप रिवाइज किए भी है तो मुझे बताया गया कि आप रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज किए भी है तो सर इसका टोटो पे इम्प्लीमेंट कब होगा? ये मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जानने का इच्छुक रखता हूँ। अगर ये आप सदन में हम सबको बताएं सर, स्पीकर सर आपके द्वारा मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ सबको, आप अगर संक्षेप में विद क्लैरिटी हमें बताएंगे कि हाँ हमने रिवाइज भी किए हैं, अभी हम उसको 1 महीने पे 2 महीने पे 3 महीने पे, मैं बार बार बोल रहा, सीएम सर बोलते हैं कि डेडलाइन पे काम करना है हमको। अगर हमें समय बता दे कि 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं सर, और कितना महीना लगेंगे उसको अगर करेंगे तो ये मुझे बता दीजिएगा तो सर आई एम वेरी वेरी हैप्पी। Speaker sir, actually this is already in implementation in toto. Only some changes have to be done. So in this August House, I assure in the time period of 6 months, all changes will be done, all revise will be done, and complete implementation will be done in a 6-month time. Thank you. Next, start question number 43. Namgi Sering. Honorable Speaker sir, thank you. सर मेरा क्वेश्चन था जो तवांग में LR ब्रांच में स्टाफ का कमी सर, तो सर तवांग तो एक मोस्ट हैपनिंग जगह है सर, वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना होता है और डेवलपमेंट एक्टिविटी का तौर पे भी बहुत कुछ बनना होता है, तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है जमीन सर, तो उसके लिए सर ये ग्राउंड में स्टाफ का जरूरी होता है। तो आज का दिन में ये दुख का बात है कि सर एक स्टाफ है वहां पे सर, वो भी अभी छुट्टी में सर, अभी इस वक्त कुछ भी काम नहीं हो रहा है सर। तो अभी मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया है, तो ऑनरेबल स्पीकर सर का ये मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि कोई नहीं जाता है, फिर कोई जाता है कैंसिल कर देता है। तो हम सबको मालूम है कि ये पेमा सरकार काम करने वाला सरकार है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी जो मिनिस्टर है उसका ऊपर में भी जिम्मेदारी है, और जो एडवाइजर है उसके ऊपर में भी ये जिम्मेदारी है। तो सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज होके नहीं चल सकता है सर, तो फिर एक सेल्फिश आप फीलिंग लेके भी नहीं जा सकता। आपका ईटानगर में सब जमा करेंगे स्टाफ को, अब बाकी ये विदाउट स्टाफ से चलने देंगे, ऐसा भी तो हमारा फिर स्टेट नहीं चल सकता है। तो ऑनरेबल जो हमारा मिनिस्टर साहब ने हमको एश्योरेंस दिया है कि आपको स्टाफ दे देंगे, तो मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी मिनिस्टर्स से और सभी एडवाइजर्स जितना है हमारा स्टेट के और कलीग MLA कलीग से, कि आप लोग जब हमारा तवांग में LR में ब्रांच में कोई भी स्टाफ जो ट्रांसफर होगा तो उसमें आप लोग कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी तो चलना है ना, तो भी हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा सर। इसमें आपको मेरे पास ये है एविडेंस है सर, 28 अगस्त 2023 को 4 सर स्टाफ का ट्रांसफर हुआ था यहाँ से पपुम, ये आपका ICR पपुम बारा ईस्ट सियांग, लेकिन एक ने भी नहीं ज्वाइन किया सर। क्यों सर? क्योंकि कोई ना कोई किसी का हाथ है सर, कोई मिनिस्टर ट्रांसफर कर दिया होगा, या कोई एडवाइजर ट्रांसफर कर दिया होगा, या तो कोई आपको MLA ट्रांसफर कर दिया होगा। तो इसको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा। फिर सर ये 6 सितंबर 2004 को 24 को सर ये आपका 3 स्टाफ का यहाँ से ट्रांसफर हुआ था सर, 4 का, लेकिन 3 कैंसिल हो गया, 1 ने ज्वाइन किया सर, वो 1 तवांग में अभी है सर, वो भी अभी छुट्टी में है सर। देन इसके बाद सर ये टेम्पोररी 3 स्टाफ का ट्रांसफर हुआ था सर, लेकिन अभी उसका टाइम चला गया, वो तो फिर यहाँ पे ये टेम्पोररी स्टाफ से तो हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं चल सकता, तो हमको रेगुलर स्टाफ चाहिए सर, काम करना है सर, हमारा स्टेट को आगे बढ़ाना है तो स्टाफ चाहिए होगा, काम करना होगा सर। तो मैं एश्योरेंस चाहता है कि इसमें
मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि आप कब तक स्टाफ देने जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा एश्योर करें तो अच्छा है सर। थैंक यू। Honorable Minister. ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो मेंबर ने जो राइज किया वो तो जेन्युइन है। प्रेजेंटली अभी तवांग में इन टोटल 3 स्टाफ्स है इंक्लूडिंग एमटीएस को लेकर। तो यहाँ से हम लोगों ने पोस्टिंग तो दिया है, लेकिन जब सम इंटरफेरेंस का कारण से ये ट्रांसफर कैंसिल हुआ, फिर भी तवांग का इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने आईसीआर से 6 स्टाफ हम लोग एज मैनर में हम लोग अटैचमेंट कर रखा है कि 4-4 महीना उधर काम करेगा, वापस आएगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। मेंबर को हम एश्योर करता है कि बहुत जल्दी हम लोगों ने हमारा ट्रांसफर कर लेगा, क्योंकि विद द सपोर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारा लैंड डिपार्टमेंट कुछ पोस्ट क्रिएट किया गया है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आरआर का अपडेट करने का प्रॉब्लम से हम लोग रुका हुआ है। ये जब आरआर का कंप्लीट हो जाएगा, इमीडिएटली हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कर देगा स्टाफ को इसका रिक्वायरमेंट। एंड थ्रू यू हमारा जितना या हाउस मेंबर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि जब जब ट्रांसफर होता है थोड़ा इंटरफेरेंस एंड थोड़ा नोट को नहीं लिखने से अच्छा है, क्योंकि जब ऑनरेबल लोग लिखना शुरू कर देता है कि किसी को ट्रांसफर करता है तो फिर उसमें इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, इससे प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए ऑनरेबल मेंबर को मेरा एश्योर है विद इन 2-3 मंथ्स हम लोग स्टाफ को आपका पोस्टिंग करने की कोशिश करें। थैंक यू। Start question number 45. Tapi Darang. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर मैं ये रंगीन बस्ती के बारे में थोड़ा ये बताना चाहता है। ये बस्ती फर्स्ट 1885 में उधर सेटल किया था। इसमें 32 और जैसा है और 250 जैसा ये पॉपुलेशन है। इसमें सर 2016-19 में इसमें ये ग्राउंड सब्सिडेंस, ग्राउंड क्रैक्स, हीपिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ स्प्रिंग्स ये हो के वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रीलोकेट करने के लिए बस्ती को बता दिया है। तो ये जो चल रहा है ये 1950 से चल रहा है सर। ये सीकिंग और क्रैक वगैरह ये बस्ती का। इसमें ओरिजिनली जो पासीघाट से पांगिन आलो जाने वाला रास्ता ये रंगीन बस्ती और सियांग बस्ती का बीच में था। ये 1960-70 में तो उसको ये रीअलाइनमेंट करके अभी वो रास्ता रंगीन बस्ती का वेस्टर्न साइड में है। अभी जो रास्ता उधर में था वो सब अभी दिखाई नहीं देता है। ये पूरा सियांग नदी में चला गया। और जो स्कूल है जहाँ में मैं क्लास 5 तक पढ़ाई किया था, स्कूल का फेंसिंग का सामने आ गया। उसमें आपका 200 मीटर लेंथ का ये स्लाइड हो गया और ये आपका उसका वाइड 80 मीटर है और डेप्थ 10 मीटर जैसा हो गया। ये होके एजुकेशन का जो पासीघाट का डिपार्टमेंट है उन लोग बारिश होने से बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ाने के लिए मना किया है। अभी ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको रीलोकेट करने के लिए रिकमेंड किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी उसको रीलोकेट करने के लिए बोला है सर। अभी ये सिचुएशन ऐसे हो गया, उसको होने के बाद 4-5 घर तो शिफ्टिंग कर लिया और बस्ती का आदमी लोग का तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक तो जगह उन लोग आइडेंटिफाई किया है शिफ्टिंग के लिए, वो हाईवे से 3 किलोमीटर जैसे दूर है और उसके लिए पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्कूल बिल्डिंग चाहिए। मैं आपका तरफ से गवर्नमेंट को वही अपील करना चाहता है, ये सबको देख देने से ठीक है बोल के। और सर जो रंगीन बस्ती तो सियांग रिवर से ऑलमोस्ट 300 मीटर ऊंचा में है
और अभी पूरा वर्टिकल हो गया। और वेस्टर्न साइड में ये हाईवे जो आलो पांगिन जाने वाला आदमी लोग भी देखता होगा, पूरा क्रैक होके स्लाइड हो रहा है। अभी हम ये बस्ती के ऊपर से भी पूरा क्रैक हो गया। अभी बारिश होने से बस्ती का आदमी लोग रात को सो नहीं सकता है। इसलिए मैं आपका तरफ गवर्नमेंट से अपील करना चाहता है, ये शिफ्टिंग के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प करने से बहुत ही अच्छा होना था। वही हम रिक्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। Honorable Minister. ऑनरेबल स्पीकर सर, जो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 45 और ऑनरेबल मेंबर तापी तरंग साहब ने जो यहाँ पे रखा हुआ है, वो एक्चुअली एक कंसर्न विषय है और इनका जो कंसर्न है ऑलरेडी आपके माध्यम से इस हाउस में रखा गया है। तो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गांव है और रेंगिंग गांव जो, वो इन्होंने ठीक ही बोला है, काफी समय से वहाँ पे लैंड स्लिप हो रहा है और ग्राउंड में भी क्रैक्स काफी डेवलपमेंट हो गया है। तो वहाँ में जो अपना GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से वहाँ पे पूरा सर्वे को भी कंडक्ट करने अभी दे रहा है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। सरकार की ओर से डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से वहाँ के जितने भी जो विलेजेस है उनको अलर्ट किया गया कि आप लोगों को एक सेफर जगह में शिफ्ट करना है। सो अकॉर्डिंगली जैसे ऑनरेबल मेंबर दारंग साहब ने जो बताया कि शायद वहाँ पे एक नया लोकेशन भी आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये जो जिक्र किया इन्होंने कि हाईवे से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो इसमें अभी 2 प्रोस्पेक्ट्स में बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कहीं नया गांव सेटलमेंट होता है तो उस गांव के लिए रोड बनाना, पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, स्कूल है तो स्कूल भी बना के देना, वो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपके माध्यम से हम एश्योर करेंगे कि वहाँ पे प्रॉपर जो शिफ्ट करेंगे तो सरकार की ओर से जो भी सहयोग है वो हम लोग पूरा एक्सटेंड करेंगे। और जहाँ तक शिफ्टिंग का जो बात है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लास्ट टाइम का बजट में भी अनाउंस किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा देश भर में अनदर 3 लाख करोड़ नया घर बना के देंगे। तो अभी नया गाइडलाइंस जब आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि शिफ्टिंग में उस स्कीम का माध्यम से हम लोग कितना हद तक हम लोग मदद एक्सटेंड कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ अपना स्टेट भी हम लोग फंड्स ऐड करके थोड़ा बड़ा पैकेज बना के लोगों को देता है। एंड होपफुली आई थिंक इस बार का PMAY में जो डिस्कशन जो चल रहा है, हमें सुनने को आ रहा है कि पिछले बार का PMAY से भी ज्यादा धनराशि केंद्र से भी उपलब्ध किया जाएंगे। सो ये दोनों टर्म्स में हम लोग इसको जरूर हम लोग मदद करेंगे। Thank you. No supplementary. Next, start question number 49. Nabam Vivek. I am satisfied with the answer. So I have no supplementary. Thank you. Honorable Speaker, sir, supplementary question. Okay. I would like to ask Honorable Minister Health to you that it is reported that 7 nurses of Long Sick Hospital has been attached at TRIMS and salaries are drawing from the Longding against Longding. So I would like to ask whether Honorable Minister will immediately send back the 7 nurses to the Longding or post the new nurses to the Longding immediately. A. B. पंक्चर और ये पंक्चर नहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर वर्क का पेट करुणा ट्रस्ट के साथ में है। पहले 3 और 2 डॉक्टर था, लेकिन अभी सिंगल डॉक्टर है। एक MBBS वाला भेजा तो वो उसको वो ज्वाइन नहीं हुआ बोला है। प्लस कामवा नोगनू का भी 2-3 डॉक्टर था, लेकिन अभी सिंगल डॉक्टर है, उसमें भी डॉक्टर देने की कोशिश करने के लिए ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मिनिस्टर साहब को पूछ रहा। स्पीकर सर, ये जो लॉन्डिंग का नर्सेस के बारे में जो बताया है, लास्ट टाइम कोविड का टाइम में वहाँ से हम लोगों ने नर्स को लेकर के यहाँ में ट्रेनिंग दिया, इसलिए उनको यहाँ रखा गया है। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट यूनियन भी वहाँ से आया था, फिर कुछ लोगों ने बोला भी था कि नहीं अभी इतना जरूरी नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने जिसको ट्रेनिंग हम यहाँ दे के रखा हुआ है उसका बदले में उनको दूसरा नर्स देने को हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको हम उसका बदले हम दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स का कमियां का बारे में, तो डॉक्टर कमियां तो है, लेकिन लास्ट टाइम आप देखा होगा हमने ICR रीजन से कैपिटल से कम 44 डॉक्टर्स जो यहाँ जमावड़ा होकर बैठा था,
तो सीएम साहब का आशीर्वाद से उसमें मैंने कहा कि सर इसमें आप थोड़ा आशीर्वाद देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्या है कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग करता है तो हम लोगों का ऑनरेबल्स लोग ही पूरा फिर उसको वापस रिटेन करने के लिए या उसको ट्रांसफर को कैंसिल करने लिखता है। उनका भी मजबूरी होता होगा, जरूर मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ ईटानगर में इतना साल से इतना डॉक्टर यहाँ जमावड़ा होकर बैठा था, तो उसको हम लोगों ने निकाला। 44 डॉक्टर्स हम लोगों ने निकाला है। अभी भी डॉक्टर्स का हमने 52 डॉक्टर्स हम लोगों ने जो अपना एपीसीएस के थ्रू से पास आउट होकर निकला था, उन लोगों को भी हम लोगों ने दिया, ट्रांसफर किया, पोस्टिंग किया उसको। और 44 डॉक्टर्स जो हमारा टीम से जो निकला है, उनका एक प्रॉब्लम चल रहा है कि वो लोग कभी बोलते हैं कि उन लोग रूरल पोस्टिंग नहीं, रूरल पोस्टिंग उनको जाना मैंडेटरी है 1 साल के लिए, तो उसका बारे में थोड़ा उसको हम डिस्कस करके उसको भी हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो डॉक्टर का अभी बहुत जल्द आपको मैं जरूर उसका आपका जहां जहां कमियां है हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। Next, start question number 48. Moise Sai. Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker. My question was to the Honorable Sports and Youth Affairs Minister. It was regarding the construction of futsal ground at Teju. मैं रिपोर्ट आंसर देखने के बाद में आई वुड जस्ट लाइक टू से टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कि मुझे लगता है कि सर आपको डिपार्टमेंट ने मिसलेड किया है, because one futsal ground is under construction at Teju right now. So I have sent you the photographs also. So I think we need to have a talk later on about this. क्योंकि जब ग्राउंड में futsal stadium, futsal ground बन रहा है, then how can the department reply that no scheme till that has been sanctioned at Teju? जबकि सर आपका इंफॉर्मेशन के लिए आई जस्ट लाइक टू टेल यू कि आपका ही कुछ ऑफिसर्स आके वहाँ पे इंस्पेक्शन करके गया था सर। तो व्हाट आई शुड से दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, लेकिन आई वोंट लाइक टू आस्क एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। थैंक यू। You want to Mr. Speaker, sir, Troy, I would like to clarify the question. I think you might have received wrong replies. As for information received by me, is that it has already been sanctioned. 49 lakhs was sanctioned, and in the tender process in 2022-23, 4 bidders were participated, and out of which 1 bidder was given, and work is on progress. And as for land availability certificate given by district administrations, location was selected and work is yet to complete. But I don't know where from you have received that information. सर हमारे यहाँ पे तो वही दिखा रहा है जो रिप्लाई तो हमें तो वही फर्निश किया गया है जो मैंने अभी आपको बोला है। Anyway, I will give you the replies later. Thank you, Speaker. next, start question number 27. Thangwa Mangham ji. असेंबली को क्वेश्चन करना पड़ेगा। जवाब तो इससे दिया है। Honorable Speaker, sir, असेंबली में ठोक। my question is, मजाक बना के। star question number 27 is regarding the construction of CO office and staff accommodation at Pumau Circle Headquarters. Here, the answer said that chamber 5 room building constructed in the 97 and 98 is allotted to single officer, and type 3/4 for CO accommodation, and 2 nose type 2/4 for staff accommodation has been located. So here I would like to inform you that this accommodation, the office was constructed long back in 1997 with the DOTC fund, the small amount of DOTC. That time road communication was also not good. Now also road is not good. So the
building have become now unfit for human stay. It is already some 27 years back that the building was constructed. That is SP type kind of building, not RCC. So my question is whether the government has any plan to construct the CO office and the staff quarter in the Puma headquarters. But the answer I got is doesn't arise. The question doesn't arise. Does not arise. So this is not the satisfactory answer because as I have informed our House also on the day that the Puma Circle headquarters was inaugurated in the 1983, but still now remain unfunctional, non-functional because of the lack of accommodation, because of the lack of office premises and the shortage of staff and communication bottleneck. These are the many reasons that the CO office could not be properly functioned, which is in the borderline of the border of the insurgency state Nagaland, the disturbing state Nagaland. So it is the duty of the government to see that such a border area circle office is functional. So I would like to know from the Honorable Chief Minister, whether the government has any plan for construction of the office building for circle CO circle officers and his quarters and the quarters for the staff. ऑनरेबल स्पीकर सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है, इनफैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पुमा सर्कल में, ये काफ़ी पुराना हो गया है, अराउंड 25-27 ईयर्स जिसे हो गया है। और मेंबर ने जिसे कहा कि वो सब स्ट्रक्चर एसपी टाइप बिल्डिंग ही है, तो इसमें मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहेगा सभी मेंबर्स के लिए कि एज पर गवर्नमेंट जो पॉलिसी नोटिफाइड है डेटेड 31 अगस्त 2006, उस नोटिफिकेशन का मुताबिक जितने भी हमारा डिप्टी कमिश्नर्स है उनको इंटरेस्ट किया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिडेंस ऑफिसेज एंड क्वार्टर्स जहाँ जहाँ कंडीशंस खराब है, रिपेयर मेंटेनेंस या नया कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको अच्छे से एग्जामिन करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो अभी यहाँ सप्लीमेंट्री में डिपार्टमेंट की ओर से ये मेंशन किया गया है कि डीसी लोंगडिंग से अगर वहाँ से रिपोर्ट आता है तो उसको हम लोग जरूर आगे बढ़ाएंगे। इनफैक्ट जितने भी अरुणाचल में, अपना अरुणाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना है। तो लास्ट हमें याद है कि डीसीएम साहब का लास्ट ईयर का बजट में भी हम लोग ने मेंशन किया था कि जितने भी जो नेफा टाइम्स का भी काफ़ी सारा बिल्डिंग पड़ा हुआ है उसको भी इन ए फेस मैनर हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम लोग का रिप्लेस करेंगे। और इस बार का भी बजट में आउट ऑफ द 4 पिलर्स इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे मेंशन है। तो आपके माध्यम से मैं मेंबर को एश्योरेंस देना चाहेंगे कि कुमाऊं सर्कल का रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर से वहाँ से आने के बाद इसको हम लोग जरूर टेकअप करेंगे। Start question number 3, Kumar Bhai, since he is absent. Next, start question number 39, Wangdong Wangdongji. Speaker, sir, I start question number 39. The Education Minister and the Education Department has brought up a very idealistic program and plan of a Sikshit Arunachal 2029. Now, before even the plan and program takes off, herein I would like to ask it supplementary in regard to the appointment of KGVB teachers in Tirap district. An interview which was conducted in the month of November 12 and 13. 4 months or about 5 months have gone by. Although the list of the appointed teachers was sent to the Department of Education here at Itanagar, so far no appointment has given in the case of Tirap district.
wherein I have heard that some districts, the teachers have been appointed. Now, what is the reason for not approving the appointment of the teachers in Tirap district? I've heard that whether the Honorable Minister, who is a visionary educationist and also interested to uphold and uplift the education system in our state, whether the activities of his commissioner is aware of. The commissioner has written that not approved in the file. So when an interview was conducted, that also in November 12 and 13, what is the reason for this appointment to be delayed or not given? And why was the interview conducted in the first instance if appointment was not to be given? Now we talk of improving the education system, the scenario in our state, particularly in a least developed and insurgency affected district like Tirap. I think special care and intent of the government must be more focused. And I would appreciate if the Honorable Minister can assure me, yes, this appointment will be taken. Thank you. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, while I appreciate the question raised by Honorable Member Sri Wanglim Luangdong regarding the appointment of the KGB teachers, I'd just like to tell you that the interview was conducted, and after the interview was conducted, the list of the candidates were forwarded to the Department of Education. So the department has written a letter to the districts, especially to the DDSE cum DPO, Tirap, to provide the total number of students and teaching staff, including supporting staffs, duly verified by the district administration. So once the report comes, then I assure you that we will issue the approval as soon as we get the report from the districts. And it's just not about, maybe he's under the misconception that only the Tirap has been, barred from giving the appointment, but there are a few more districts. So once we get the report from all the districts together, we will give the appointment as soon as possible. Can I ask a supplementary? Yeah, Yeah. please. As per the report that has been placed in my disposal, at the moment the number of students in Barab is 121 and in Turiat is 145 students are there. So why can't the appointment be initiated as fast as possible? Thank you. Yeah, that's what I'm saying on the speaker, sir. If the reports are already in the department, I assure you that we will, give the approval as soon as possible. Next, start question number 17. Yukasone. ऑनरेबल स्पीकर, मेरा जो क्वेश्चन था सजेता तो आपका ऐसे सजेता मिनिस्टर को, ये विडो पेंशन एंड ओल्ड एज पेंशन हमारा लखनऊ का लोग को क्यों नहीं दे रहा है, ये मिनिस्टर से जानना चाहता है। Honorable Speaker, sir, we have already furnished a reply to the questions put by the questioners. However, since he has asked specific questions that I would like to tell, there are two types of widow pensions. That is, Chief Minister Social Security Schemes is our state widow pensions. And another one is a National Social Assistance Programs being funded by the central government through RDA, Rural Development Department. Since our department has been decided as a nodal department, for the Lekang people of the Lekang, generally it needs ST and PRC for CMSS, means Chief Minister Social Security Schemes. However, they can avail the fund widow pension under NSAP,
National Social Assistance Programs under RD. In this context, I would like to tell the August President that 50,000 quota was assigned to the state of Arunachal Pradesh, but due to some technical reasons, only 6,000 benefits are now getting from NSF. That means under National Social Assistance Program. Therefore, since we don't have our own portal, therefore we cannot say that why they are not getting benefits under NSF. But so far, in application received, that I would like to tell that we have received so many applications from Lekang, people of the Lekang, that we will look into it, and very soon, if that should be sorted out, and we will give the benefits to the people of Lekang under NSF. Thank you. Yeah. So Thank you. satisfied? Next, start question number E. Hang on, Mang Fiji. I'm satisfied with the reply. Okay. Wah. Next, start question number 2, Kumar Bhai, since he's absent. Last, start question number 11, Ninong Iring. धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से उसका मुझे जवाब मिला, उसमें तो मेरा संतुष्टि तो है, लेकिन वही है कि जो हमारे खास तौर पर जो चीफ इंजीनियर्स हैं ईस्टर्न जोन के, सेंट्रल जोन के, अभी भी उनका जो ऑफिस है यहाँ ईटानगर में है, उसको हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ से मेन जो जितने भी हमारा अपना कार्यालय के लोग भी यही काम करते हैं। बट जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए आपने पूरा उसका राशि प्रदान किया है, और हमारे यहाँ ऑफिसर्स भी वहाँ ऑलरेडी पोस्टेड हैं। उनका क्या हो जाता है कि 1-2 कमिश्नर्स का उनका डुअल चार्ज हो जाता है। तो हमारा वहाँ में जो ईस्टर्न पार्ट में है, जो नामसाई में है, वहाँ में उनका हम वो चाहते हैं कि उनका फुल टाइम वहाँ हो। और दूसरा सर, मेरा वो एक और मैं एक आपको आकर्षित करना चाहता हूँ कि जैसे आपने हमारा कुमार भाई साहब को आपने पिछले बार जवाब दिया कि जब हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम अपना नया जो नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए हैं, वैसे हमारे भी एक समस्या है, क्योंकि ये शायद हमारे उप मुख्यमंत्री के वहाँ भी है, जहाँ वाकरो का केस में है। तो जो अभी मेरे पास डेपू मौली, देताक, सीडो और कोरा है, तो इसमें क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ विकास के कार्यक्रम है, उसमें एक थोड़ा सा बाधा हो जाता है जब ऑफिसर्स हमारा इस पक्ष में काम नहीं करते, क्योंकि when they have already come into this district, they have already the people have already agreed to stay in East Siang district, means उनका जो जितने भी उनका कार्रवाई है, जो विकास के कार्रवाई है, आप जैसे हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने एक नया पॉलिसी लिया है, इट शुड बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो विकास के कार्यक्रम हम ग्राम सभा से शुरुआत करेंगे, तो जब हम ग्राम सभा में जाते हैं तो उनका वही एक शिकायत है कि यहाँ के ऑफिसर सब हमारे इधर नारी में होगा या आपका अभी तो शायद लेखाबाली में होगा। तो इसलिए जो यहाँ विकास के कार्यक्रमों के लिए भी मेरा यही आपसे सर एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग हो या जो हमारे जो ग्रामीण विभाग हो, सब हमको इसको सौंपा दिया जाए, तो कि हम यहाँ से बॉटम टू टॉप का जो कार्यक्रम है थ्रू ग्राम सभा, हम इसका जो विकास का जो प्रक्रिया है इसको हम शुरू करें। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो ऑनरेबल मेंबर श्री निनोंग इरिंग साहब ने जो यहाँ पे रखा है, इनिशियली इनका जो मेन जो क्वेश्चन था वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स खास करके ईस्टर्न वेस्टर्न में जो प्रश्न जो पूछा था, बहुत बड़ा लेवल में पूछा, अंत में जाके सप्लीमेंट्री गाँव लेवल तक लेके चला गया। चांस मिल गया सर। तो एनीवे, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं हाउस को बताना चाहेगा कि देखिए, अरुणाचल में हमेशा जो बोलते रहते हैं कि ज्योग्राफिकली काफी वास्ट है हम लोग का प्रदेश को, तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करना, इसको गवर्न करना, डेवलपमेंट लेके जाना वाकई ही काफी चैलेंजिंग है।
तो पुराना जो गवर्नमेंट का जितने भी फॉर्मर जो अपना सरकार रहा है, तो सभी का पॉलिसीज था आगे बढ़ाने का, मगर अच्छा इनिशिएटिव्स भी लिया था कि ईस्टर्न जोन ट्रीट करना, वेस्टर्न जोन ट्रीट करना, मगर वो पेपर में ही सीमित हो गया था। जितने भी जो ऑफिसर्स है, खास करके चीफ इंजीनियर्स का जो इंस्टीट्यूशंस है, वो सारा लोग ईस्टर्न में भी है, वेस्टर्न में भी है, लेकिन सब ईटानगर में ही बैठता था। तो लास्ट हमारा टेन्योर में मैंने कोशिश किया कि प्रैक्टिकली उनको सब जगह में पोस्टिंग जहाँ में दिया है उसको वहाँ जाना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पे एरिया आइडेंटिफाई करके ऐसे मेकशिफ्ट ऑफिसेस में भी चलाने दिया। तो मोस्ट ऑफ द चीफ इंजीनियर्स जो है अभी ईस्टर्न वाला लो ईस्टर्न में ही चला गया है अभी। और साथ साथ डिविजनल कमिश्नर्स का जहाँ तक बात है, 2 डिविजनल कमिश्नर्स का जो ऑन पेपर में पहले से पुराना खोल के रखा था, एक ईस्टर्न जोन और एक वेस्टर्न जोन। और हमारा टाइम में मैंने लास्ट ईयर वहाँ सेंट्रल जोन भी एक तो नया क्रिएट किया था। तो दे हैव 3 डिविजनल कमिश्नर्स नाउ। तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न जोन के लिए अभी तक सरकार ने जो दिया है 1681.33 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड दिया हुआ है। और वेस्टर्न डिविजनल कमिश्नर के लिए 2934 लाख उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद सेंटर में जो लास्ट ईयर हम लोग ने अप्रूव किया था उसको 1500 लाख दिया हुआ है सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो जब सेंटर में सारा तीनों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा तो कंसर्न डिविजनल कमिश्नर्स भी ईटानगर से निकाल के वहाँ पोस्टिंग हो जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ। दूसरा जो अभी इन पर्टिकुलर जो इन्होंने अपना एरिया का जो देपाक जो 3 गांव आपने जो मेंशन किया वो अभी लोअर सियांग में जो आ गया, तो उसका आपने कुछ मेंशन कर रहा था कि वहाँ पे कुछ बॉटम टू टॉप प्लानिंग के लिए बेसिकली इसमें थंब रूल यही है कि मैंने जैसे बताया कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बिचुम वाला केस को भी मैंने कल परसों एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। तो आपका भी वहाँ पे ऐसे है कि शायद वो लोग वोट आपको वोट करते होंगे। नहीं, हमको वोट नहीं करता सर। वोटिंग इज एट 36 बट डेवलपमेंट प्रोसेस हैज टू बी डन बाय अस। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट नहीं सर, वो जितना भी स्कीम्स है अभी हम लोग डील कर रहे हैं सर। ओनली द डिपार्टमेंट्स है, दे शुड बी हैंडल्ड, दे डोंट हैव टू कम टू अस बिकॉज आवर ऑफिसर्स ऑलरेडी देयर। ओनली जो स्कीम्स है हम लोग बनाना चाहते हैं। हमको वोट नहीं दिया होगा लेकिन फिर हम चाहते हैं कि उनका विकास हम करें सर। धन्यवाद। इसमें थंब रूल तो वही है कि बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करेगा वहीं का जो सिस्टम है उसी को ही ड्राइव करना होगा। तो थंब रूल तो यही है। धन्यवाद। Honorable members, बहुत खुशी का बात है टुडे वी कुड कंप्लीट बिफोर टाइम क्वेश्चन नंबर। कल सिर्फ हम लोग 3 किया था, आज सारा के सारा बिफोर टाइम हम लोग कर दिया। आज डॉक्टर साहब ने कम बोला इसमें। So we'll move to the next agenda. Now, announcement regarding leave of absence of member. Honorable members, I have received request from Sri Dongru Singju, Honorable MLA, for leave of absence for 11th and 12th March 2025. I have allowed his request. Now, next agenda, Bill for consideration and passing. Item number 2, Bill for consideration and passing, the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2025. Sri Chaunamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax, Excise and Narcotics may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2025. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 be taken into consideration. Now, member who desire to take part in discussion on the bill may do so. Any member wants to participate or discussion? Since there is no member, now
The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax, Excise and Narcotic may reply. आपका सर कुछ स्टेटमेंट. अध्यक्ष जी, ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भारतवर्ष में सबसे बड़ा एक टैक्स रिफॉर्म बहुत सालों से इस टैक्स रिफॉर्म पर लाने के लिए बारी की सरकार में इसको चर्चा किया था और उस जीएसटी काउंसिल भी बनाया, लेकिन बहुत सालों से उस समय का जो सरकार था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे कि 2014 में बीजेपी सरकार आया तो उस समय से लेके 2017 तक बहुत जोरदार से इसका बहस हुआ। उस समय पार्लियामेंट में भी बहस हुआ, सिर्फ काउंसिल में भी बहस हुआ। तो अल्टीमेटली मैं तो 2011-12 में भी उस काउंसिल में था, तो उस समय भी बहस चलता था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली 2017 में पार्लियामेंट में लाके इसको एक्ट पास किया और तब से चल रहा है। अगर टैक्स के बारे में बोला जाए, अरुणाचल प्रदेश में हमको टैक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि हम इनकम टैक्स देते नहीं है अरुणाचल वाले, तो इसलिए टैक्स के बारे में हमारा इतना ज्ञान भी नहीं था। उस समय का सरकार में भी अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत सालों से मैं सरकार में था, तो कभी कभी सरकार में जब बहस होता है तो टैक्स के बारे में कभी बहस नहीं होना चाहिए। टैक्स अरुणाचल में आना ही नहीं चाहिए। इस तरह कभी एक बहस होता रहा समय, टैक्स आने से हमें लोग वोट नहीं देंगे, सरकार वापस नहीं आएगा, इस तरह कभी बहस होता है। लेकिन टैक्स तो आना ही है, एक ना एक दिन टैक्स तो हमको लेना ही है। अरुणाचल में भी अभी बहुत सारे रिफॉर्म आना है जो संसद सरकार लेता है, तो वो रिफॉर्म अरुणाचल प्रदेश में भी लागू होगा। तो अल्टीमेटली यूनिफॉर्म फ्लोर टैक्स आने लग गया। तो जब यूनिफॉर्म फ्लोर टैक्स आने लग गया, हमने बोला है कि नहीं इसको लागू नहीं करना है। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन दिस हैज बिकम एन एक्ट, तो आपको लागू करना है। तो अरुणाचल पर भी धीरे धीरे टैक्स लागू करने लगा, तो लोगों को जानकारी हुआ कि हाँ टैक्स हमें भी भरना हो। और ये जो जीएसटी जो है एक बहुत बड़ा एक टैक्स रिफॉर्म। पहले जमाना में क्या होता है, इंस्पेक्टर राज होते थे, उसका बाद चेक गेट होते थे। आपको मालूम है कि असम बंगाल बॉर्डर में चेक गेट में इतना इलीगल टैक्स चोरी होते थे। फिर इंस्पेक्टर राज के समय में किस तरह का हालत होता रहा। तो ये सब जो है इलीगलिटी बोलो, आप जो भी बोलो, इसको कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जीएसटी आया। तो 2000 में हमने जो एक्ट पास किया रहा, उसको बारीकी में हम जब जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होता है, तब कभी हम फिटमेंट कमेटी में भी हम भेजता है जो भी अमेंडमेंट लाना है, कुछ सुधार लाना है। फिटमेंट कमेटी होता है, फिटमेंट कमेटी ने फिर वहां बहस करके, फिटमेंट कमेटी में हर स्टेट से ऑफिसर लोग जाते हैं, फिर वो फिटमेंट कमेटी से रिकमेंड जीएसटी काउंसिल पे आता है। फिर कभी जो बड़ा जो रिफॉर्म होता है उसमें जीओएम, जो आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी एक कमेटी होता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें एक चेयरमैन बना के उसमें बहस होता है, उसमें डिस्कशन होता है। तो वो आके फिर जीएसटी काउंसिल में आता है। तो इस तरह का समय पे ये रिफॉर्म आते रहा है। और ये जो रिफॉर्म जो है, ये जो है क्या है, ये टैक्स रिफॉर्म, टैक्स सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए
और जो कंप्लायंस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको करने के और ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन टैक्स सिस्टम इसको लाने के लिए समय समय में हमको अमेंडमेंट लाना होता है। तो इसीलिए बहुत सा अमेंडमेंट भी आया है। हम पहले भी इस अमेंडमेंट को हम यहाँ में हमारा अपना सदन में हमने इसको अमेंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अमेंडमेंट होता है हमें स्टेट गवर्नमेंट में भी अमेंड होता है। ये जो अमेंडमेंट 2000 बहुत सा स्टेट गवर्नमेंट में हो चुका है अभी तक। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि हमारा यहाँ स्टेट में भी होना। तो इसीलिए ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो अमेंडमेंट है 2017 the present bill has 41 clauses amending various sections of the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax 2017 either or inserting some new provision or for omitting some provision इसके लिए है। So amendment are made in section 2, 9, 10 within bracket 5, 13 within bracket 3, 17 within bracket 5, 21, 31 within bracket 3 within bracket F, 35 within bracket 6, 49 within bracket 8, 50 within bracket 1, 51 within bracket 7, 61 within bracket 3, 62 within bracket 1, 63, 64 within bracket 2, 65 within bracket 7, 66 within bracket 6, 104 within bracket 1, 107 within bracket 6, 109, 112 within bracket 1, 112 within bracket 3, 122 within bracket 1B, 127 and 140 within bracket 7. Insertions are made in section 11A, 16B within bracket 16 within bracket 5, 30 within bracket 2, 54 within bracket 15, 70 within bracket 1A, 73 within bracket 12, 74 within bracket 12, 74A, 75 within bracket 2A, 122A, 128A, 171 within bracket 2, and paragraph 9 and 10 of Schedule 3. Substitutions are made in section 20 and 39(3). Omission is made in section 54 in bracket 3. So, इसलिए therefore the present amendment bill has been laid on the floor of the House for passing. Thank you. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now, we will take up clause by clause for consideration of the bill. The question is that clause 2 to 41 do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. Clause 2 to 41 stand part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title and commencement do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. Clause 1, the enacting formula and the short title and commencement stand part of the bill. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotic may now move the motion for passing of the bill. The Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. The Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 is passed. We'll move to item number 2, subsection 2, the Arunachal Pradesh Arun Parivar Patra Authority Bill 2025. Sri Chonamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Planning and Investment,
may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Arun Parivar Patra Authority Bill 2025. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Arun Parivar Patra Authority Bill 2025 be taken into consideration. Now, member who desire to take part in discussion on the bill may do so. Yes. Yeah, Simai, Ashim Simai, will give next. Thank you, Mr. Speaker, sir. I would like to take part in the discussion of Arunachal Pradesh Arun Parivar Patra Authority Bill 2025, which has been laid in this House for passing. I must appreciate the intention of the government to bring and provide good governance, transparency, and hassle-free delivery of the public welfare schemes and the benefits to the people. The intention of the government is very clear, and since it's the welfare government, the focus of the discussion, crux of this bill is to give much services and welfare schemes to the people and to the citizens. I have little bit of observations here and a small suggestions in this bill. The Arun Parivar Patra Authority Bill is in the line of the central government act that is Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016. So this is an act in the central government, and in the line of that is Parivar Patra Authority Bill has been placed in this August House, which is a very welcome step. But we have not gone through that central act, and the act has not been given to us. This is just a bill. So had there been the copy of that original act, it would have been more better for the understanding of the honorable members and of the people. However, I have a small observation here. In section 2 of the subclause V, it is mentioned that resident with all its grammatical variations means a resident who has resided in a local area of Arunachal Pradesh for the past 6 months or more, or a person who intends to reside in that area for the next 6 months or more. This is not clear, and I don't understand whether this act is for the people residing in the Arunachal Pradesh, or for whether it's for the APST community or for the entire state. This clarity is not here, so here is little bit my observation. And the other is in the clause 8 Arun Parivar Patra Card on enrollment under section 6, the authority shall issue to the head of the family a Arun Parivar Patra Card in such form or in such manner on payment of such fees, if any, as may be prescribed. The fees, of course, it's very clear, but if the fees can be mentioned, a minimal price should be fixed. This is my second suggestion. And in the third, clause 10 of the chapter 4, clause 10,
security and confidentiality of information. Through this bill, government is intending to establish an Arun Parivar Patra resident data repository. This is purely a database, but however, there is every possibility of leakage and misuse of these in data of the entire citizens of this state. So there must be a act which should be whoever is involved in disseminating the information of an individual in a wrong manner, if there is any leakage of information, they may misuse by any authority or the officials who are involved, engaged in this authority. They should be given exemplary punishment. Of course, in the punishment is mentioned here in chapters 8, offenses and penalties. It is mentioned that if anyone found leaking or whoever shall share or publishes the identity, information and photography of Arun Parivar Patra card holder in contravention of this section 10 shall be punishable with fine which may extend to rupees 10,000. I think this is a good one, but the person involved in leaking the information should not be limited in to fine of rupees 10,000, but it should be sent to imprisonment at least for 6 months. Minimum of 6 months should also be included, so that they will not try to, leak the information, which is very confidential. So these are some of the suggestions that I have gone through, and as I said in the beginning, the intention of the act is very clear. This is purely in the interest of the public and the citizens of the state to give free and fair as much benefit to the citizens of the state. So I support this bill. Thank you, Mr. Speaker, sir. Next, Nabam Vivek, Honorable MLA. Thank you, Speaker, sir. I have also some observation and on this bill. Yes, I want to have clarification whether such bill is passed in any other state of the country, because already we have Aadhaar. Aadhaar is a national authority where every Indian citizen has an identity. It is used in every public delivery system or benefit system. And in the act, it is mentioned that the female will be the head of the family. So is it very necessary that with due apology to the female, I have no objection if it is such, but why it is so, if there is any specific reason? Yeah. And here the main concern is whether this Arun Parivar Patra, I mean it is like a other identity card, whether it is for the APST or all the people residing in Arunachal Pradesh, that clarity has to be there. It is involving the non-APST also, like in my constituency we have Chakmas, Karbis, they are voting in the assembly election, maybe citizen of India, but they are not APST. So if this Parivar Patra is issued to all such people, are we not bypassing the PRC, or some kind of wrong message may go to the people, or the act should be with full clarity for what purpose we are giving, overriding the Aadhaar card. So these are the few pertinent issues which I like the Honorable Minister
concern, Honorable Deputy Chief Minister will answer very clearly. So after that, I have placed my reservations. It's up to the government to go ahead with the bill or not. Any members? Now, the Deputy Chief Minister and Minister in charge of Planning and Investment may reply. अध्यक्ष जी, जब से पेमा खांडू सरकार आया, पेमा खांडू 1.0, पेमा खांडू गवर्नमेंट 2.0, पेमा खांडू गवर्नमेंट 3.0। हम पिछले 8-9 साल में समय समय में हम बहुत सा रिफॉर्म लाया है, बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और बहुत सा टेक्नोलॉजी भी हम लाए हैं। एक वेलफेयर सरकार का तौर पे हमने लोगों के लिए, अरुणाचल के हित के लिए, गरीबों के लिए, हमारा किसानों के लिए, लास्ट माइल पीपल, लास्ट माइल स्टैंडिंग इन द क्यू, उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हम समय समय पे यहाँ सदन में सभी मेंबर को ये मालूम है कि हमने बहुत सा रिफॉर्म लाया है, बहुत सा पॉलिसीज भी हम लाए हैं हमारा लोगों के हित के लिए। तो हमने अगर कल्चर ट्रेडिशन का भी बात बोलते हैं, तो मॉडर्निटी के बात बोलते हैं, तो एडेप्टेशन ऑफ मॉडर्निटी, एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्निटी विद रिलेशन टू दी ट्रेडिशन। हम ट्रेडिशन को भी भूलना नहीं, मॉडर्निटी आने से भी ट्रेडिशन को भी भूलना नहीं। तो उसी हिसाब से हमने हमारा जो है अभी का जो है, जो अरुणाचल परिवार पत्र एक फैमिली पहचान पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, फैमिली आइडेंटिटी। तो अभी हमारा जितना भी हमारा ये जो आइडेंटिटी है या जो भी हम स्कीम मिलता है, वेलफेयर स्कीम मिलता है हमारा, तो कभी कभी हमको फेक उसमें वो भी मिलता है, कभी कभी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होता है। तो मोदी जी हमें ऐसा कहता है कि परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हमें 8 साल में काफी हमने ये रिफॉर्म लाए हैं, करप्शन को रोध करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। उसी हिसाब से हम परफॉर्म भी किया है। आप देखने का, आंखों देखा हाल, कितना विकास हो रहा है हमारा, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। अरुणाचल पीपल्स एस्पिरेशन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। हमारा जो लोगों का जो एस्पिरेशन है, ख्वाहिश है, आशा आकांक्षा है, उसको हम फुलफिल करने के लिए हमारा कोशिश है थ्रू आवर रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोदी जी का जो सोच है, उसी सोच में ही हम लोग चल, उसी रास्ता पे, उसी रोड वे में हम लोग चल रहा है। इसलिए ये भी एक जो अभी है अरुणाचल प्रदेश परिवार पत्र, वन ऑफ द बिगेस्ट ये जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस ये बजट सेशन में। मैं तो कहूँगा कुछ अपना जो जिज्ञासा है, तो हमारा 2 मेंबर ने अच्छा से सवाल भी पूछा है,
और क्लैरिफिकेशन है। सही बात है, कुछ कुछ चीज़ों को अगर उसमें कुछ क्लियरिटी चाहिए तो उसको बोलना भी है। बहुत सा समय हम ऐसा बिल आता है, एक्ट पास कर देता है, फिर बाद में फिर हम लोग पता नहीं है, we do not go through the bill, then we pass it, thereafter again we come to the government and this has been made a wrong, this thing, insertion of this clause, that clause and all this thing. So before that we should have a proper discussion in the floor of the house only. So दो मेंबर ने अच्छा से बोला। तो now मेरा हिसाब से हमें पहले जानना होगा कि व्हाट इज अरुण परिवार पत्र। जो आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड है, जो अरुण परिवार, अरुण परिवार पत्र जो एक फैमिली का जो है, एक फैमिली का और एक पहचान पत्र है। फैमिली में जितने भी लोग रहेगा उसका एक पहचान पत्र है। ये फैमिली बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम for all residents of Arunachal Pradesh. It has been introduced by the government to make delivery of public welfare. जो public welfare का जितना भी जो benefit है, उसको easier way में और most transparent way में और अच्छा से उसको हम उसको benefit को दे पाए। इसलिए ये जो पहचान पत्र हमने जो बनाया है, हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कैसा इसको इम्प्लीमेंट। तो आपने बोला है कि ये परिवार पत्र किसके लिए है, ऐसा सिमाई ने अच्छा सवाल किया है। तो कौन कौन रेसिडेंट मीन्स व्हाट, कि अरुणाचली नॉन अरुणाचल सब होगा या जितना भी होगा। तो ये residents means all Arunachali's and other who are eligible for government of India and state welfare। जैसा आप दोनों ने पूछा है कि इसको किसको जाएगा, जैसा आपका वहाँ में कार्बी है, कोको है, तो दिस इज ए वेलफेयर स्कीम है। अगर अरुणाचल प्रदेश में जो जो वेलफेयर स्कीम्स है, दोज हु आर एलिजिबल इन अरुणाचल, दिस इज फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ देम। हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंट, ये जो परिवार पत्र है, ये ऑनलाइन में अप्लाई कर सकता है, ऑफलाइन में अप्लाई कर सकता है। उसके लिए एक ऑफिशियल पोर्टल होगा, एक कॉमन सर्विस सेंटर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और मिनिमम डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड चाहिए उसके लिए, या और एनी अदर आइडेंटिटी कार्ड होने से होगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होगा, एंड बेसिक फैमिली डिटेल्स देना है उसमें। रोल ऑफ अरुण परिवार, अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी जो वो यहाँ में लिखा है, यहाँ में बिल में, उसका रोल क्या होगा। The authority will be established under the act to oversee and manage the entire implementation of the system. So authority will create and maintain a database, Arun Parivar Patra resident data repository. We create guideline for common service center. C ensure data management and its security. जो security का जो बात है, वो synchronize the Arunachal परिवार पत्र identity with existing welfare database. बहुत सा डाटा हमारा पास है, अभी आरटी डिपार्टमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, सबका साथ सिंक्रोनाइज करके ही ये आइडेंटिटी सबका एक साथ हो जाएगा, सिंक्रोनाइज करके, ये डुप्लीकेसी नहीं होगा। How it will benefit? How it is going to benefit? By consolidating the family to a single Arunachal Parivar Patra ID, benefit transfer will become a faster and more transparent. This will help ensure public welfare benefits under state-run welfare program are delivered efficiently, transparently, and to the right people. Further, ongoing outreach and awareness campaign will be further increase enrollment. गांव-गांव में जो लोगों को समझने का नहीं है, उनको भी अवेयरनेस लाना होगा, उनको भी समझना, especially in the rural areas.
एड्रेसिंग डाटा सिक्योरिटी एंड कंसर्न, ये हमारा मेन कंसर्न होगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए. The authority will ensure that the resident data repository is secured and family information is protected. Family information. It will be done via strong encryption and legal safeguard, including penalties for unauthorized use, furnishing wrong information, and for offense committed by company. तो ये सब ये सिक्योरिटी सिस्टम भी रहेगा. ये अलग अलग स्टेट में हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी जानकारी आप लोगों ने लिया है. ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश have passed such bill. This bill is basically to create a repository of data of beneficiaries. ये जो सिंक्रोनाइज होगा सब डिपार्टमेंट का साथ, सब बहुत सा है अभी, ताकि डुप्लीकेसी ना हो, ये सिंक्रोनाइज करेंगे. दिस विल बी in synchronize with Aadhaar and all other data of other department or line department. ऐसा करके होगा. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छा है ये सभी के लिए. पहले तो क्रिएट अरुण परिवार पत्र अथॉरिटी हम लोग क्रिएट, provide unique Arun Parivar Patra ID to each family residing in the state. Create a database of all families living in the state. Single database for use by all departments for all state schemes, golden repository. The objective and goals, the identification of socio-economic details of families through field level survey. Gather detailed data including names, family details, Aadhaar numbers, bank account details, education, skill levels, occupation, self-declared annual income, etc. Enable target beneficiary identification in push mode. Schemes can be pushed to eligible beneficiaries instead of waiting for application. Beneficiary need not resubmit documents every time to government. Streamline application process for government scheme. Assist in better planning and implementation of policies. Advantage of Arun Parivar Patra. Facilitate direct benefit transfer (DBT) for all schemes. Will be updated in real time. Census is conducted approximately every 10 years. New schemes can be designed based on the data as per actual needs. Targeted intervention can be made at every stage of life cycle of citizens: birth, nutrition, health, education, skill, employment, marriage, old age, and death. Authentic record of all support received from the government to each family in the state. Removal of duplicate and ineligible families. This will also remove duplicate and ineligible families. Rajasthan is saving rupees 500 crore annually. Approach to implementation. First survey by government servants of all families. पे सर्वे किया जाएगा. Minimal cost and time of survey. Data protection and security measures. Act of legislature is essential to ensure protection and personal data of citizens. Rules will be notified by the authority created for security of data. Structured framework and for following established protocols for all security layers. Rigorous authentication of all users accessing them. No unauthorized access. Access to only relevant data based on strict
to know principle. Comprehensive application and study logs. Data traffic will be secured through firewalls and encryption. तो इस तरह का पूरा सिक्योरिटी है और ये होने से हमारा जितना भी वेलफेयर स्कीम है उसका डुप्लीकेसी नहीं होगा, फेक नहीं होगा और अनऑथोराइज जो क्लेम है वो भी नहीं होगा। एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हम लोग जितना भी गवर्नमेंट वेलफेयर है वो दे पाएगा। सो इसलिए ये जो है अरुण परिवार पत्र, इट इज कॉल ऑफ द डे, विल बी सेविंग क्वाइट सम ऑफ मनी for the state exchequer also. So I would like to request all the honorable members to pass this. Thank you very much, honorable. Thank you, sir. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for consideration of the bill. The question is that clause 2 to 44 do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 44 stand part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title and in commencement do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the short title and commencement stand part of the bill. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Planning and Investment may now move the motion for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Arun Parivar Patra Authority Bill 2025 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Arunachal Pradesh Arun Parivar Patra Authority Bill 2025 is passed. Now we'll take up item number 3, discussion on motion of thanks to Governor address. Now the House will take up discussion on the motion of thanks to the address of the Honorable Governor under the provision of sub Rule 2 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. Honorable Governor of Arunachal Pradesh was pleased to deliver his address on 6th of March 2025 under Rule 14 Subclause 1. I have received notice of the motion of thanks on the address of Honorable Governor. Now, Dr. Mahesh Sai, Honorable MLA, may move the motion of thanks to the address of the Governor. Mr. Speaker, sir, I rise to move the motion of thanks to the address of Honorable Governor delivered on 6th March 2025 in the following term. That the members of the 8th Legislative Assembly of Arunachal Pradesh assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the address which he has been pleased to deliver to the Assembly on 6th March 2025. Shri G.K. Tako, Honorable MLA, may seconded the motion. Mr. Speaker, sir, I seconded the motion. Now, Dr. Mahesh Sai, being the mover, may initiate the discussion on Governor address. Thank you, Honorable Speaker, sir. मैं गत 6 मार्च को ऑनरेबल गवर्नर साहब ने हमारे इस सदन को एड्रेस किया था और उसी एड्रेस को लेके धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं इस सदन के सामने खड़ा हूं। अपने एड्रेस में माननीय राज्यपाल जी ने ये माना है कि पिछले कुछ सालों में, टू बी वेरी एग्जैक्ट पिछले 9 सालों में
हमारे राज्य ने हर सेक्टर में चौतरफा डेवलपमेंट देखा है और उन्होंने अपने एड्रेस के जरिए से ये भी माना है कि ये जो चौतरफा डेवलपमेंट हमारे राज्य में पिछले 9 सालों में हुआ है उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, जिनके पास राज्य को डेवलप करने का एक विजन है, जो बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के दूरदर्शिता के कारण, उनके मेहनत के बदौलत ही आज हमारे राज्य ने पिछले कुछ सालों में चौतरफा डेवलपमेंट हर सेक्टर में देखा। उनके साथ साथ हम सब जानते हैं कि किसी भी देश या किसी भी प्रदेश का ग्रोथ का जो मापदंड है वो उनके इकोनॉमी से लगाया जाता है। हमारा राज्य कितना आगे बढ़ रहा है उसका जो मापदंड है वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है। और मुझे सदन में ये कहते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट के बदौलत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लीडर्स अच्छे नेतृत्व के बदौलत हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में ये 11.01% रहा है। और सदन को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो नेशनल एवरेज है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो 6.5%। ये जो आंकड़ा मैं सदन के सामने रख रहा हूं इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा राज्य विकास की राह पे बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जब इस सदन को एड्रेस किया तो उन्होंने कनेक्टिविटी के ऊपर में बहुत जोर दिया। उनका भी ये मानना है और हम सब का भी ये मानना है कि अगर किसी गांव तक, किसी जिले तक, किसी सर्कल तक अगर हमें विकास ले जाना है, विकास पहुंचाना है तो हमें कनेक्टिविटी के ऊपर जोर देना पड़ेगा। पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा है कि कनेक्टिविटी के कमी के कारण हमारे दूर दराज में रहने वाले जो गांव के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। उसी कनेक्टिविटी को लेके हम सब मानते हैं कि कनेक्टिविटी इज वेरी वाइटल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। और मैं इस सदन को ये कहते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में हमारा जो रूरल कनेक्टिविटी है, जहां 80% से ज्यादा अरुणाचली लोग जो गांवों में रहते हैं, वहां का कनेक्टिविटी में पिछले 9 सालों में 251% का हमें वृद्धि देखने को मिला, जो मुझे लगता है कि अपने आप में एक काबिले तारीफ आंकड़ा है। सिर्फ रूरल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नहीं, रूरल कनेक्टिविटी में तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से भी देखा है कि किस तरह से बहुत सालों तक अनकनेक्टेड रहे ताली सर्कल, विजयनगर सर्कल, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने खुद बहुत दुख तकलीफ में जाके वहां के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि अगली बार या कुछ सालों के अंदर मैं जब दोबारा आऊंगा तो यहाँ चल के आऊंगा। और आज का हकीकत ये है कि ताली और विजयनगर जो बहुत सालों तक अनकनेक्टेड रहा है रोड कनेक्टिविटी से, आज वहां रोड कनेक्टिविटी पहुंच चुका है। तो सिर्फ रूरल रोड कनेक्टिविटी में ही इस तरह का वृद्धि देखने को मिला ऐसा नहीं है। हमारा जो राज्य में नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है पिछले 9 सालों में उसमें भी हम लोगों ने 143% का वृद्धि देखा। सो ये अपने आप में एक कहानी बयान करता है कि किस तरह पिछले 9 सालों में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमारे राज्य आगे बढ़ रहा है। और कनेक्टिविटी जैसे मैंने कहा है
सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं। अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो एज एन अरुणाचली कुछ साल पहले हमें बहुत दुख लगता था, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी के मामले में हमारा अरुणाचल कहीं दिखाई नहीं देता था। अगर हमें बाहर जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, बेंगलोर जाना होता है या कोई भी शहर में जाना होता है तो हमें आसाम से होके आसाम में जाके एयरपोर्ट में जाके प्लेन पकड़ना पड़ता है। लेकिन आज एज एन अरुणाचली हमें फक्र महसूस होता है कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम लोगों ने भी 2 कदम आगे बढ़ाया है। आज हमारे पास अपने ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट है, जिसके जरिए से हमारे अरुणाचली हमारे भारत के, सिर्फ भारत के ही नहीं विदेशों के भी हर जगह से खुद को कनेक्टेड फील करते। और सिर्फ डोनी पोलो एयरपोर्ट तक ही एयर कनेक्टिविटी सीमित रहा ऐसा नहीं है। तेजू, पासीघाट, जीरो, ये हर जगह जो है आज एयर कनेक्टिविटी के मैप में अपना नाम अंकित करा चुका। एंड दिस इज ए वेरी वेलकमिंग साइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टेट, क्योंकि हम सब ये जरूर मानेंगे कि कनेक्टिविटी के साथ हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कनेक्टिविटी के साथ हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, जो हमारा स्टेट का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है। कनेक्टिविटी के साथ हमारा लोकल इकोनॉमी बढ़ेगा। और मैं हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा। In order to democratize the information केंद्र which must सरकार be